Welcome students in your physics class, and today I have taken some numericals based on work energy theorem. Question number 1 is, a body of mass 2 kilogram is acted upon by a force such that its VT graph is as shown. Find the work done by this force. In this question you have given the VT graph. Okay, on x-axis you have taken the time, and on y-axis you have taken velocity, which is in meter per second, and time is in second. Okay, when the time is 0, initially you can say initially the initial velocity of the body is 10 meter per second. Okay, when the 2 second pass, the velocity becomes 0. Okay, body comes from here to here. मान लीजिए A से B पर जब बॉडी पहुंचती है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है, क्योंकि x एक्सिस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी एट B। दूसरा से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं जो वेलोसिटी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसके लिए हमें वर्क डन निकालना है। व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन इन दिस केस? एज वी नो द वर्क डन इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू F डॉट S या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज करेंगे। व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो हम इसका यूज करेंगे। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। Change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. You can also write half m Vf square minus half m Vi square. Vf is final velocity and Vi is initial velocity. As you have given, okay, in the graph, in the Vt graph, you have given the initial velocity and you have given final velocity. Okay, तो initial velocity कितना दिया हुआ है आपको? Vi दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड और Vf 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है 2 सेकेंड के बाद, ठीक है। तो पुटिंग दीज वैल्यूज, हाफ मास गिवन है 2 किलोग्राम, ओके, इनटू Vf 0 माइनस हाफ 2 इनटू Vi is 10 square. Okay, finally you get minus 102. Student, this is the negative work. This is the negative work. Clear? इस तरह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके वर्क डन फाइंड कर लेते हैं। Now come to the second question. A body of mass 1 kilogram is acted by some forces such that its displacement is given by S is equal to t square minus 2t plus 10. Find the work done by all the forces in 0 to 2 second. ठीक है, 0 से 0 to 2 second जो टाइम है एक्चुअली उसके लिए आपको क्या निकालना है, वर्क डन फाइंड करना है। एंड यू हैव गिवन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है इस बार। S is equal to 2t square minus 2t plus 10. Okay, now we'll use the work energy theorem, which is W is equal to Kf minus Kl. Clear? And we can also write W is equal to half m Vf square minus half m Vi square. Clear? Okay, as we given the displacement equation S is equal to 2t square minus 2t plus 10. With the help of this equation we can find the velocity, क्योंकि हमें velocity यहाँ चाहिए, initial और final velocity चाहिए। Clear? मास आपको given है क्वेश्चन में 1 किलोग्राम। तो हम किस तरह से velocity निकालते हैं? As we know V is equal to होता है ds upon dt, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे हम इसको, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? इस टर्म को डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा? 2 to the 4 t हो जाएगा माइनस 2, ठीक है। डिफरेंशिएशन आपको आता है, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा 4t minus 2. Clear? Now, students, you are going to find out for this time 0 to 2 seconds. So firstly, we will put t is equal to 0. Then you get at t is equal to 0, you get initial velocity Vi is equal to which will be minus 2. देखो t is equal to 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा minus 2. इस तरह से at t is equal to 2 पर आप Vf निकाल लेंगे, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। t is equal to जब यहाँ पुट करेंगे तो 4 to 8 हो जाएगा, minus 2, रिमेनिंग आपको 6 मिलेगा, ठीक है। 8 minus 2 is equal to 6. Now students, putting these values in this equation, you will get W is equal to half, मास की वैल्यू 1 है, into Vf आपने फाइंड किया है 6 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ, ओके, मास इज 1 into minus 2 स्क्वायर, Vi is minus 2. क्लियर? minus 2 स्क्वायर हो जाएगा। नाउ आगे कैलकुलेट कीजिए इसको, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा, अपॉन 2 माइनस दिस इज
2 टू 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे 4/2 हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 18 टाइम जाएगा, माइनस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, फाइनली यू गेट 16 जूल विच इज द पॉजिटिव वर्क। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा आपको, वर्क कैन बी पॉजिटिव, वर्क कैन बी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्क मिला, यहाँ पर आपको पॉजिटिव वर्क। Now we have taken the question number 3. A body is acted upon by a force such that its displacement x is related with time t as t is equal to root x plus 3. Okay, you have given the time in the function, okay, in the terms of x. So time is a function of x here. In this question you have given the times equation, okay, equation of time. Find the work done by this force in 0 to 6 सेकंड, ये आपको टाइम दिया हुआ 0 और 6 के लिए आपको टाइम है, ठीक है। तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम W इज इक्वल टू हाफ m df स्क्वायर माइनस हाफ m vi स्क्वायर, ये वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन है। हम किस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एज यू गिवन t इज इक्वल टू रूट x प्लस 3, तो विल फाइंड x इन टर्म्स ऑफ t। यू हैव गिवन जो इक्वेशन है वो t गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, बट हम क्या फाइंड करेंगे, x फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेप मैंने यहाँ कम किया है, मैं लिख देता हूँ। तो t रूट x क्या हो जाएगा, रूट x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 को इधर लेके जाएंगे तो t माइनस 3 हो जाएगा, t माइनस 3। स्टूडेंट जब हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन व्हाट यू विल गेट x इज इक्वल टू t माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर ये x मिलेगा आपको, यहाँ पर t माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इसको आप a माइनस b होल स्क्वायर से ओपन करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, टी स्क्वायर मिलेगा प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, क्लियर। तो टी स्क्वायर प्लस b इज 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 2ab, 2 3 is 60, क्लियर। ओके, नाउ दिस इज द इक्वेशन you have simplified x is equal to t square plus 9 minus 60. अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव गिवन द पोजीशन, यू हैव गिवन द डिस्प्लेसमेंट हियर, ओके। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होगा। डिफरेंशिएट करेंगे हम x को, x का इक्वेशन गिवन है, यहाँ से यहाँ तक इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 मिलेगा, माइनस 6 मिलेगा, ठीक है। तो 2t प्लस 0 माइनस 6, इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ओके। ये 2t माइनस 6 हो जाएगा। Now we can easily find out the initial final velocity. Firstly, we will find initial velocity which will be at t is equal to 0. t is equal to 0 जब हम पुट करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस 6 मिलेगा आपको। जब t is equal to 6 पुट करेंगे, t is equal to 6 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 तो आपको प्लस 6 मिलता है। तो इस तरह से हम t is equal to 0 पर इनिशियल वेलोसिटी हमें मिलती है -6 और t is equal to 6 पर फाइनल वेलोसिटी हमें 6 मिलती है। ये वैल्यूज पुट करेंगे हम किसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम में। W इज इक्वल टू हाफ m, मास आपको इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देंगे, हाफ m, ओके। Vf की वैल्यू कितना है, पॉजिटिव है ये, ठीक है, प्लस 6 से होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ m, ओके। Vi इज -6 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फाइनली कैलकुलेट करेंगे इसको, कितना हो 36/2 m हो जाएगा, -36/2 m हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये दोनों ही टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो फाइनली आपको वर्डन यहाँ 0 मिलता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्डन 0 क्यों हुआ, क्योंकि इस केस में स्पीड हमारा कांस्टेंट है, देखा आपने ये, क्योंकि ये तो वेलोसिटी है और वेलोसिटी में माइनस प्लस साइन भी, ठीक है, माइनस साइन जो है वो डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। लेकिन इसका जो स्पीड है, स्पीड का डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता है, स्पीड कांस्टेंट है। कितना स्पीड, 6 है, तो स्पीड इज 6 मीटर पर सेकंड, आप इसमें नाम ले सकते हैं, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए वर्डन आपको 0 मिलता है। तो स्टूडेंट्स ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, इफ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट देन वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विल बी 0, ओके, नोट कर लीजिए। Okay students, my next topic is conservation of mechanical energy. Students, what is the mechanical energy? Mechanical energy is the total energy, it is the sum of kinetic energy and potential energy. Clear? Now we are going to prove that mechanical energy remains constant, okay? What is the conservation of energy? What is the law of conservation of energy? According to this law,
Conservation of energy, the total energy neither created increases nor decreases. Okay, energy can be transformed from one form to another but the total amount remains same. ओके जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनर्जी एक कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी होती है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एक्चुअली. ओके, तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके, एक्चुअली ये आपको मालूम है, ये स्टेटमेंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एक्चुअली वो एक कंजर्वेटिव फिजिकल क्वांटिटी है, बट इतना हो सकता है कि उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं. केमिकल को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस तरह से मैकेनिकल को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से जो है एनर्जीज को हम कन्वर्ट कर लेते हैं. साउंड एनर्जी को हम, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. तो इस तरह से एनर्जीज जो है, एनर्जीज कन्वर्सेशन तो पॉसिबल है, लेकिन एनर्जी एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है. ठीक है, उसको हम प्रूव करने जा रहे हैं. वी हैव टेकन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. एक ऑब्जेक्ट हमने लिया जिसका मास m है और वो किसी हाइट से रिलीज किया जाता है. ओके, h हाइट से उसको रिलीज किया गया. एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी हाइट पर होल्ड किए हुए हैं और फिर आप उसको छोड़ देते हैं, रिलीज करते हैं. तो जब आप उसको छोड़ देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट डिफरेंट पॉइंट से होकर के गुजरता है. ओके, तो उनको हमने, उसमें से हमने 3 ऐसी पोजीशन ले ली जिससे वो होकर के गुजरता है, एक्चुअली पास होता है. तो दिस ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए बी एंड सी. तो ए वो पोजीशन है जहाँ पर उसको होल्ड किए हुए हैं. ठीक है, उसके बाद जब बॉडी को रिलीज करते हैं तो बॉडी बी और सी से होकर के गुजरती है. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि जो उसका स्पीड है, उसकी स्पीड में चेंज आता है, क्योंकि बॉडी जो है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करती है. और हमें मालूम है जब बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो उसकी स्पीड इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ये कहता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मीन्स ये होता है कि हर सेकंड में जो बॉडी का स्पीड है वो 10 के फैक्टर से इंक्रीज होता है. यानी कि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड लिख सकते हैं. ठीक है, जब कोई बॉडी डाउनवर्ड मूव करती है, यानी कि अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स, तब उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन और बॉडी के मोशन का डायरेक्शन सेम है, इसलिए उसका स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा. किस फैक्टर से इंक्रीज करेगा, 10 के फैक्टर से इंक्रीज करेगा. मान लीजिए अगर कोई बॉडी, ओके स्टूडेंट्स, जब कोई बॉडी किसी हाइट से रिलीज होती है तब उस केस में हम ये देखते हैं कि जो इसका स्पीड है वो हर एक सेकंड में इंक्रीज होता है. ओके, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जैसा कि मैंने आपको बताया था, g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मींस होता है 10 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड. इट मींस व्हाट, इन ईच एंड एवरी 1 सेकंड द स्पीड of the body increases by 10 meter per second. Okay, so when the body comes down, okay, then because the motion is along the direction of the force, gravitational force, so speed will be in increasing order. When the body goes up, actually, then the motion will be just against the gravity, so the speed will be in decreasing order. Okay, here students, I have taken an object of mass m, and this release from any height. The height we have taken here h, so this is the maximum height from where this body, okay, we release. Initially the speed of the body is 0 because the body is in rest. Okay, and after covering x distance from a to b, the speed becomes v1 because the body goes down, the speed will be increasing order, so this v1 will be more than this v. Okay, इसी तरह से बॉडी जब B से C जाती है तो उसका स्पीड V1 से V2 हो जाता है. दिस V2 विल बी ग्रेटर देन V1 एंड V1 इज ग्रेटर देन U. ओके, बिकॉज द बॉडी कवर्स x डिस्टेंस फ्रॉम A to B, द रिमेनिंग हाइट will be h minus x. This is the height of this position B. Students, here we are going to find out the total energy, you can say the mechanical energy, because the mechanical energy will be the sum of kinetic energy and potential energy. Will find kinetic energy and potential energy at each and every location. A पर फाइंड करेंगे, B पर भी फाइंड करेंगे, C पर भी फाइंड करेंगे. इस तरह से हम kinetic and potential का सम लेंगे. ओके, वो सम कांस्टेंट रहना चाहिए. ठीक है, तो उसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट रिमेन, ओके, कांस्टेंट, दैट रिमेन कंजर्व एट ईच एंड एवरी लोकेशन और एवरीवेयर. तो फर्स्टली आई हैव टेकन एट A. So what is the kinetic energy at A and what is the potential energy? So firstly we'll find the kinetic energy, because the kinetic energy half m v square होगा.
Okay, and because here the velocity is u, so we have taken here half m u square, and u is 0, so kinetic energy becomes 0. What is the potentiality? Potentiality will be equals to mgh. Students, as you know, the potentiality depends on position, depends on height. Okay, and what is the maximum height, what is the height for this location A? जब ऑब्जेक्ट A पर है तो उसका हाइट कितना है, h है, तो पोटेंशियलिटी कितना हो जाएगा, सिंपली mgh हो जाएगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा यहाँ से, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियलिटी, एंड काइनेटिक एनर्जी इज 0 एंड पोटेंशियलिटी इज mgh, so it will be mgh at A. Now at B, when the body comes at B from A to B, the distance covered is x. Okay, the distance covered from A to B is x. Kinetic energy will be what? B पर पहुंचने के बाद जो बॉडी का काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ m v1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि B पर जो वेलोसिटी है v1 है। अच्छा, इस v1 की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे मोशन की इक्वेशन से। ओके, तो यूजिंग दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v को रिप्लेस करेंगे v1 से, और u 0 है, s x है जो डिस्टेंस उसने कवर किया है फ्रॉम a टू b, और a की वैल्यू g है, a is the acceleration, and here we take the acceleration due to gravity, because the body moves under the effect of gravity, so a replaced by g. Here g is positive because motion and direction of force is along the same direction, so this g will be positive. So putting these values, you get v1 square is equal to 2gx, and putting this v1 square as it is in this expression half m v1 square में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, half m into 2gx, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के आपको mgx यहाँ मिलता है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम पोटेंशियलिटी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियलिटी का फार्मूला होता है mgh, हियर मैंने यहाँ पर h को कैपिटल H से डिनोट किया है, और h कितना होगा, जब B पर ऑब्जेक्ट पहुंचेगा उसकी जो रिमेनिंग हाइट होगी वो h माइनस x होगी, x को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस हाइट में से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा mgh माइनस x हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियलिटी। Now we'll find the mechanical energy or total energy. It will be the sum of kinetic energy and potentiality. Kinetic energy is mgx and potentiality plus mgx h minus x. Okay, so it becomes mgx plus mgh minus mgx. mgx से mgx cancel out हो जाएगा. Finally आपको मिलेगा mgh which will be at B. So this is the total energy at B. Similarly, students will find at C. तो एक बात यहाँ पर आपको समझने की है कि हम यहाँ जो टोटल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं ए और बी पर सेम आता है, इसी तरह से हम सी पर भी फाइंड करेंगे और सी पर भी सेम आएगा, क्योंकि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है एवरीवेयर। ओके, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू सी, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, इट विल बी टोटल हाइट। ओके, जो भी इसका हाइट है वो इसका टोटल डिस्टेंस होगा कवर्ड बाय द बॉडी, क्योंकि सी जो लोकेशन है वो जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड एक्चुअली, और ये जो हाइट है दिस इज अ नेग्लिजिबल हाइट एक्चुअली। तो टोटल हाइट उसने कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, वो हाइट के इक्वल होगा, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर दिस काइनेटिक एनर्जी, हम पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, हाफ m v2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि c पर जो वेलोसिटी है v2 है, ठीक है, और v2 की वैल्यू हम किससे फाइंड करेंगे, थर्ड इक्वेशन से, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, v इज इक्वल टू v2, u इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू g, s इज इक्वल टू टोटल हाइट। क्लियर? पुटिंग दिस वैल्यूज we will get v2 square is equal to 2gh. Now putting this value of v2 square in this expression, what you will get, kinetic energy becomes equals to half m into 2gh, finally you get mgh. Now students, kinetic energy आपने mgh फाइंड कर लिया, ठीक है, और आपको मालूम है पोटेंशियलिटी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया, वापस ग्राउंड पर आ गया, दिस इज द लोकेशन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ओके, तो उसका पोटेंशियलिटी क्या होगा, ग्राउंड पर पोटेंशियलिटी 0 होता है, क्योंकि हाइट 0 होती है, हाइट ऑलमोस्ट 0 हो गई है, ठीक है, इसलिए पोटेंशियलिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ पुटिंग दीस वैल्यूज, दिस वन एंड दिस वन, यू विल गेट द टोटल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी, mgh plus 0 mgh, इट विल बी एट C। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने तीनों लोकेशन पे फाइंड किया और हमें सेम वैल्यू मिलती है। नाउ यू कैन से द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व एवरीवेयर। ओके, थैंक यू सो मच।